जय श्री माता जी। सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। 12 मई 25 अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सहज योगा। जय श्री माता जी। सर्वप्रथम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात्
लक्ष्य केंद्रित करेंगे हमारे सहस्त्रार पर। श्री माता जी कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। Today is a great day to come to Brighton because it's the day of Buddha's birth. Today is Buddha's birthday, Lord Buddha's birthday. You all have heard about his birth and that his mother dreamt of an elephant, a large white elephant, before the birth of Buddha. And then it was predicted that a child will be born in your family who will be either a great saint or a very great king. As in Sanskrit called Chakravarti, means the one
who is the ruler of the whole world. So the father got worried and he thought he must get the son involved into family life, into material life, and give him all the pleasures of life. So he built a very special place for him, beautiful palace to live in. And where he got married to a girl called Yashodhara, was a very, very beautiful woman, gave him all the pleasures of life, everything that he could do to entice this boy away from asceticism. Also, you know the story of his going one day on the road, how he found 3 types of people, and how he felt that why a person should become old, why should a person suffer in life, and why should people die. So all these 3 things put an inquiry into himself. He started trying to understand why these things happen to human beings. With this, the inquiry started. So he reached a point where he could not bear any more the comforts and all the attachments that were entangled around him by his father. He had a son whose name was Rahul, and he left the son and the wife in the search of the truth. Now, he started from a wrong end, I should say, for the search of the truth, because he wanted to know why there are miseries in the human beings. And so he started from collective towards the center. When we see miseries all around us, many people have seen, they say, what about others? Will everybody get realization? Will everybody will have this? You see, this comes from the wrong end, I feel, because first of all we must know, are we all right? Are we perfect? Are we full of joy? Have we received the absolute knowledge? If you start from this point, it's always better. Because he started from the wrong point, searching it from the collective, to remove the miseries of the people, he had to go in a very roundabout. So he read all the books and Vedas, and this, he went to big Pandits, to all the great knowledgeable people, to meet them, to ask them the answer why there are these 3 things. That is, the yoga is the health or miserable physical body, then the death and the old age. Went and asked so many people, and they said, you have to die because you are born. And then they said that you have to become old because you are born like that. And you have to suffer because you commit sins. He was not satisfied with his answer. So he went on searching and searching and searching. And then he got tired, absolutely fed up. When he went to a place called Gaya, very near Patna it is. I have seen the place and the tree. And he sat under a banyan tree where
he slept off because he got so tired of his sleep. And after the sleep, he got up and suddenly he got his realization. And he thought the whole drama is over. Now his mother herself was Adi Shakti, gave him the birth, and she died just after the birth of the child. And he got this realization. Now at that time, when he got his realization, there was nobody to tell him what it is, that what it means. Realization is nobody to decode or talk about anything that was to be understood by him. But because of his tremendous seeking and such ardent desire that the Shuddha Ichha of Kundalini itself rose. But of course, the Adi Shakti blessed him and he got his realization under the banyan tree. Now, any incarnation which came on this earth had to samayachar, according to the time, the need of the time had to act. Firstly. Secondly, the need of the incarnation to come on this earth was first created in the human being. So supposing at a time when there was too much of ritualism, Brahmanism or priesthood, and people were trying to take everything onto those artificial rituals and all that, an incarnation had to come on this earth to correct those ideas. Like Krishna came at a time when he said, this is all Leela, puja and everything he cancelled. Nothing, no puja, nothing. You just have ras, enjoy yourself. It's all a joke going on, see. So he brought that concept at that time in the awareness of people that the whole world is a Leela, is a play of God's own whims. So you just enjoy it. And that's how he created this wonderful festival of Holi, which we had in Delhi. I don't know. Any one of you who was there for the Holi? No. You were there? 2 years. No, but this time you were not there. You might get the pictures of that. So in the same way, when Buddha came in, first problem was that he thought that it's better not to talk about God. Because in his search, everybody told him the answer was, oh, it's God who does it. He punishes you. It's God who gives you this old age. It's God who does it. But what is this God after all? Why does he do it? He said, you better ask the God. Then where is the God? So everybody put every blame on God as usual. Even that's not good. Nothing new. And nothing unusual, I should say. So this must be done by God. If you cut your throat, God put my knife in my hand and he cut my throat. So you see, he thought better not talk of God. Because everybody is going towards God. Then the people whom he met, they said, now I have become God. He said, how? He said, I am God. What? Why? Because he could mesmerize people. He said, I have become God. Just imagine. So he thought that is very dangerous to talk of God because people take God in the hand and use it for their own purpose. Always say, oh, this is what the God has to do and it's God has done it and I'm in connection with God and I'll tell God. So he got a fright and he said, better not talk about God because that puts the attention of the people on ritualism, artificial things, they are building temples after temples and just doing all these horrible things which one should not do. Like if you go to the south, you'll find the
in the temples, they shave their heads of the leaves, shave it completely. And then they have to, this all cobbled along the sides of the walls of the temple. And the ladies who shave their head are just rolling along the sides. You see, they have to do it sometimes 1,008 times, rolling. Imagine. And the water is poured on them. God knows what is the ritual from where it has come. So the poor women go on rolling like that. And somebody is pouring water on them all the time, buckets after buckets. The husband and the brother and all, they bring one after another. You see, one is finished and another one. Poor ladies rolling like that on that muddy, sort of a cobbled area. I mean, I was shocked when I saw this. I said, and then later on, you see, they became modern. So they started selling the hair, you see, abroad. So the whole thing became a big industry in Madras, you see. The hair was made into this bouffant and all that, you turn it, you see. Sent to England and other places. So, it's, I mean, in the name of God, ridiculous things were done. So he just thought better not talk about it. The first step is self-realization. He was a great Sahaja, I must say. Because he said, nothing doing, don't talk about God or anything. First you get your realization. That was the first condition. Establish it. Unless and until you have established your realization, nothing doing. So he just started his own method of propagating Buddha's knowledge, or Buddhism as they call it. Of course it became Ism later on. So all that he started with the idea that people should first become Buddha. Buddha means realize. Buddha is to know. So Buddha means the person who has known, means the one who is a realizer. So what he says, Buddham Sharanam Gacchami. I surrender. Sharanam means I surrender to the Buddhas, means to all the Sahajogis. You are all Buddhas because you know. When you know, you are the Buddha. Now, without going into all that nonsense of renunciation and shaving your head and wearing that dress and everything, you have achieved your realization. It's a short circuit or a short path. Why? Because he started from the other side. But if he had started directly from himself, it would have been better. You see, in practical sense, I'll tell you how it is. Supposing you want to repair your house. So, you have to have instrument for that house. But supposing you are worried about all the houses of the world and you start repairing. Neither you will repair other houses nor yours. So first you must practice on yourself. Put your attention to yourself. It also is a method by which you avoid seeing the point, seeing the reality. That if you are not all right, how can you improve the whole world? So when your attention goes to other things, you must know that there's something wrong with you first of all, which must be right. And that's why it took him so much time to go round and round and round. He had to give up his wife, give up his family, give up everything and get to realization. Because by giving up everything, he realized that it is he who should achieve. It's a very circuitous way. But you can just say it doesn't exist anything, first let me get all right. That's all. Now what happened? That became a method for people to achieve God. Many people think that you must suffer like Christ to achieve God. You must renounce the world, then achieve God. Actually renouncing the world and all that is just a myth. How do you renounce the world? It's myth. What are you renouncing? I mean, in any case, you can't carry this with you, can you?
I mean, can you even carry, I would say, even a thread? Nothing. When you come like this. You are born closed fists. When you go, the hands are like this also. Have you ever seen a dead corpse? The youngest has his hands like this. Nothing happening. Just going like this. So you don't take anything from here. So this renouncing this, I renounce that, I renounce that, I give up this, I give up my wife, I give up that. That's no use. Because it's a state of mind in which your being becomes, I don't know the English word for that, which doesn't stick to something. What is it called? Released. No. You see, any substance that doesn't stick to anything. I mean, we have all kinds of stick plasts. Unattached. Hmm? Unattached. No, but that quality, there's a quality of the temperament which doesn't stick to it. Doesn't stick to anything. I mean, you put it here, it will come out. You can say the soap or something like that. Like mercury, mother. Huh? Like mercury just flows. Like mercury. But mercury also you can apply sometimes with heat. But this is something beyond mercury. It's absolute. Which doesn't stick to anything. You see? You just become like that. Oh, you do wear this, you wear that, you have this, all right. You are never. The name of the goddess is Nirmama. Nirmama. That for her nothing is her own. You see, she doesn't stick to it. She is in everything, but she doesn't stick to it. For example, now see the light here. It's not sticking to anything, it exists by itself. Doesn't stick to anything. This is the nearest you can say, it doesn't stick to anything. Any but thing tries to stick it, you see, gets burned. That's a good idea. So this is what it is. This is called an enlightened person. Doesn't stick to it. And whatever tries to come very close gets burnt out. So such a person is not attached to it. But that's not a mental thing that you can do that, oh, I'm not attached to you. See, it's very common in this country, especially, I hate you. But you can't hate anyone. How can you? And nor can you love anyone because the attachment. अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल 4, मल्टीपल 7, मल्टीपल 8 आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी. मैं मान ही नहीं सकता आपको प्रॉब्लम ना आए. सारी दुनिया का आपको पता लग सकता है सत्य का, अगर आप आत्मा के प्रकाश में जागरूक. अब हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान है. आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा? आत्मा के प्रकाश में जागरूक. अब हमारे यहाँ भारतीय भूमि पर बहुत सारे स्वयंभू स्थान है. आप आत्मा के प्रकाश के बगैर कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू है या झूठे है? क्योंकि जो स्वयंभू स्थान होगा वहां से, जैसे इन्होंने कहा था कि कूल ब्रीज आने लग जाती, और जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा कि हाथ में कूल ब्रीज आ रही है? केवल सत्य जानने के लिए केवल आत्मा होना चाहिए. आज का सहयोग इस प्रकार हमने बांधा है कि किसी तरह से थोड़ी सी तो भी रोशनी इनके अंदर आ जाए, थोड़ी सी धुंधली सी भी आ जाए. कोई सफाई की जरूरत नहीं. कंदील को पहले सफाई करने की जरूरत नहीं, उसको करते करते जन्म बीत गए. अब पहले इनके कंदील में दीप जला दो, फिर ये खुद ही देखेंगे कि इस कंदील में यहाँ से दाग है, यहाँ से दाग है, खुद ही साफ कर लेंगे.
जब आत्मा का प्रकाश आता है और मनुष्य जब आत्मा से निगडित हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो देखता है कि मेरे आत्मा का प्रकाश इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा कंदील जरा खराब है, इसको साफ कर लो। और उस कंदील के प्रकाश में ही उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, अहंकार आदि जितने भी दोष है सब एक साथ साफ हो सकते हैं। कोई कहे कि अंधेरे में आप कपड़ा धोइए तो कोई नहीं धो सकता। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि अभी तक हमने सत्य को जाना नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार के बगैर हम सत्य को जान नहीं सकते। आजकल लोग लड़ते हैं इश्यूज के लिए कि चलिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, उसके लिए आप झगड़ा करें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, फिर और कुछ उठा लेंगे। इस तरह से एक एक चीज बना के उसको लेकर के लोग झगड़ते हैं। लेकिन ये बनाया किसने है न्यूक्लियर वॉर? मनुष्य ने, मानते हैं आप? अगर मनुष्य ही परिवर्तित हो जाएगा तो न्यूक्लियर वॉर कहां से रह जाएगा? और अगर मनुष्य परिवर्तित नहीं होगा तो परमात्मा भी उसको बचाने के लिए क्यों सोचेंगे? बेकार की घरे में ऐसे दीप आप जानते हैं जो हम जलाते हैं दिवाली के रोज, वो मिट्टी के दीप टूटे फूटे होते हैं, उनको फेंक देते हैं। उनको कौन जी से लगा के रखेगा? लेकिन अगर ऐसे दीप तैयार हो कि जो निरंतर जलते रहे, उसको संभाला जाता है, ऊपर रखा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जाति का भी है। अगर मनुष्य जाति में ऐसे कुछ लोग हो जाए कि जिनके प्रति परमात्मा जागरूक हो जाए और सोचे कि ये मेरे बेटे बैठे हैं ना, तो सारा संसार बच सकता है। कहते हैं कि अगर साड़ी का एक छोर भी बच गया तो सारी साड़ी बच सकती है। इसी प्रकार थोड़े से सहयोगी भी इस संसार को बचा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर को खत्म कर सकते हैं, सारे वातावरण को वो संभाल सकते हैं। पर वो एक दशा आनी पड़ती है। जब तक वो दशा नहीं आती, जब तक इतने लोग यहाँ नहीं होते, तो ये कार्य बन नहीं सकता। जो लोग सहयोग में आते हैं, सिर्फ लेक्चर सुनने चले जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको खबर हो गई है और थोड़ा सा सुन भी लिया और थोड़े पार भी हो गए, लेकिन अगर उसमें वो उतरे नहीं तो इस संसार में जो कुछ भी होगा उसके वो जिम्मेदार। अभी मैं किसी घर खाना खाने गई थी, वहां एक प्रोफेसर साहब आए, कहने लगे अगर माता जी आए तो मैं दर्शन के लिए आती। दर्शन के लिए पहुंच गई और मैंने देखा, बस वो दर्शन करके बस खुश हो गई, आप हो गया दर्शन। हिंदी की प्रोफेसर है। मैंने कहा साहब आप क्या कभी पढ़ाती हैं? कहले हाँ, अधिकतर हम कभी पढ़ाते। कैसे पढ़ाती हैं आप कभी? अब जो लिखा पढ़ाते। अरे मैंने कहा उस कबीर को समझाने के लिए आपको अभी 7 जन्म लेना होगा। ये तो बात है। कहने मैंने कहा आत्म साक्षात्कार ले लो, इसी जन्म में समझा दो। लेकिन वो नहीं, उनको टाइम नहीं है ना। तब उस जमाने में टाइम तो होना चाहिए था, क्योंकि वो लोग सब स्ट्राइक पे थे। एक स्ट्राइक से इतना ही फायदा हो सकता है कि कोई लेक्चर में तो आ जाते हैं लोग, लेकिन उनको टाइम नहीं, क्योंकि एक इश्यू ले लिया, उसके पीछे हम लड़ रहे हैं। ये आत्मा का जागरण मनुष्य को अत्यंत शांति प्रदान करता है, क्योंकि सर में कोई विकल्प नहीं रह जाता। अंदर से मनुष्य एकदम शांत हो जाता है। जैसे कि आपने एक रथ का चक्का देखा होगा कि रथ का चक्का परिधि पे, सरकमफेरेंस पे घूमते रहता है, लेकिन इसका बीचों बीच का जो मध्य बिंदु है उसको तो पूरी तरह से स्थित होना पड़ता है, स्टडी होना पड़ता है, नहीं तो चल ही नहीं सकता। जब आप पार हो जाते हैं तो उस मध्य बिंदु में आप उतर जाते हैं, जहां खड़े होकर आप देखते हैं सारी परिधि घूम रही और आप शांत बैठे। आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते।
आप देखते हैं सारा नाटक और आप विचलित नहीं होते, आप में साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे कि उठते हुए पानी में और गिरती हुए लहरों में मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन नाव में बैठने के बाद वो देखता है मौज से उसे। इसी प्रकार मनुष्य जब आत्मा की नाव में बैठ जाता है तो किसी चीज से विचलित नहीं होता, उसमें शांति प्रस्थापित होती है। अंदर की शांति से ही बाह्य की शांति आने वाली है और बाह्य की शांति से अंदर की शांति नहीं आती, क्योंकि बाह्य में जो शांति बनाई गई है ये सब कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। हम लोग कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई, है क्या भाई? आज एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। पहले सिख लोग और जो दुनिया में आए तो हिंदुओं के रक्षण के लिए आए, अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। सब दोस्ती कैसे खत्म हो गई? क्या हो गया? हम क्या भूल गए? वजह यह है कि सबको जोड़ने वाला जो एक सूत्र है वो ये आत्मा है, या कहना चाहिए कि वो सूत्र ये कुंडलिनी है और आत्मा उसके अंदर एक मणि स्वरूप है। इस सूत्र को इस मणि में पुरोया गया और जब सभी एक हैं तब लड़ाई किससे होने की है? तो दूसरी जो हमारे अंदर स्थिति आती है, जो सत्य, वो ये कि हम सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, माने हमारी जो आज मनुष्य की जो चेतना है वो सीमित, ये असीम की चेतना अंदर आ जाती है कि आप अपने उंगलियों पे जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को क्या परेशानी और आपको क्या परेशानी। यहाँ बैठे बैठे जैसे मैंने कहा आप निक्सन का हाल जान सकते हैं, उसी प्रकार आप हर एक के बारे में जान सकते हैं और हर एक को ठिकाना लगा सकते हैं, माने बुरे मार्ग नहीं, अच्छे मार्ग। ये जो आपके अंदर नवीन चेतना का आयाम, डायमेंशन आ जाता है, उस आयाम को पाना ही हमारे उत्क्रांति माने इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य। अमीबा से जो आज आप इंसान बने हुए हैं वो इसीलिए कि इस आखिरी चरम लक्ष्य को आप पाएं। इसलिए आत्म साक्षात्कार होना ये हमारा हक भी है और ये हमारा चरम लक्ष्य भी है। कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक ऐप से स्क्रिप्ट जनरेट करके उसी स्क्रिप्ट को इस एक टूल में स्क्रिप्ट टू एआई वीडियोस बनाकर एकदम इजीली घर बैठे महीने के लाखों कमा रहे हैं। सिंपली इस डीपसीक ऐप में आपको जिस भी रिलेटेड वीडियोस बनाना है उसकी स्क्रिप्ट जनरेट कर लेनी एंड देन प्ले स्टोर से फिल्मोरा ऐप डाउनलोड करके यहाँ टेक्स्ट टू वीडियो पर टैप करके अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। कुछ ही सेकंड्स में पूरी की पूरी एआई वीडियो जनरेट करके देती है। इसमें और भी भर भर के फीचर्स दिए जिसे यूज करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मिलियंस में व्यूज ला सकते हैं, जिसे आपको आगे जाकर प्रमोशंस भी आएंगे, आप इजीली अर्न कर सकते हो। तो अभी जाकर फिल्मोरा ऐप ट्राई करो, इसकी डायरेक्ट लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगी। एंड जो भी दोस्त ऑनलाइन से पैसे बनाने की सोच रहे हैं भाई, उसे वीडियो जरूर शेयर करना। ये एक्टर लोग टीवी के 10 एपिसोड से जितना कमाते हैं ना, यूट्यूबर्स एक वीडियो बना के उससे ज्यादा कमा लेते हैं। इसलिए मैं भी आजकल रील बना रहा हूँ। मैंने सोचा मैं तो फेमस हूँ, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे वीडियो डालूंगा तो अपने आप व्यूज आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। 30,000, 50,000, 1 लाख व्यूज बस नहीं, मतलब मेरे हिसाब से तो कम ही है ना। फिर मेरे हाथ लगी एक सीक्रेट ऐप जो बाकी सेलिब्रिटी भी यूज करते हैं, जिसको चलाने के बाद मेरे व्यूज बिलियंस में पहुंचने लग गए। 25 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन। वो सीक्रेट ऐप है सीखो ऐप। यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर व्यूज कैसे बढ़ाए, फिर देखा कि फेसबुक से पैसे कैसे कमाए, और फिर एक देखा कि यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ाने के तरीके। अरे ऐसी ट्रिक बताई है कि आपको लगेगा कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। 1000 व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं, 1 मिलियन पर कितने मिलते हैं, वेरीफाइड प्रोफाइल कैसे बनती है, और ये
कि नए सोशल मीडिया अकाउंट की शुरुआत कैसे करें, सब सीख जाओगे। तो अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब देखने में टाइम वेस्ट करने की जगह इनसे पैसे कमाना है तो डाउनलोड करो सीखो, और कुछ नया सीखो। इंस्टॉल नाउ दबाओ और सीखो ऐप डाउनलोड करो। तीसरी चीज कि जो चित्त होता है ऐसे आदमी का या ऐसे इंसान का जिसमें आत्मा का जागरण हो गया, वो चित्त समय पर उसी क्षण पे ठहरा रहता है। ये नहीं अगली पिछली बात कुछ नहीं सोचता, उस क्षण खड़ा है। जैसे अब आप मेरे सामने बैठे हैं, सब मेरे सामने चित्रवत ठाड़े, अब मैं सब आपको देख रही हूँ, मुझे मालूम आप कौन है, कहाँ बैठे हैं, क्या है। कभी भी मैं आपको देखूंगी, मैं जान जाऊंगी कि आप कहाँ बैठे थे, कौन सी साड़ी पहने थे, कि कौन से कपड़े पहने थे, किस ढंग से बैठे थे, क्या। जैसे कि कोई कैमरा नहीं होता है, ऐसे चित्र सा मन में खिंच जाता है, और जिसे देखना नहीं चाहे वो बिल्कुल ही नहीं देखता है। तो आपका जो चित्त है वो जागरूक हो जाने की वजह से अपने ही आप धर्म जागरूक हो जाता है कि धर्म है ये चित्त स्वरूप हमारे उदर में, पेट में फैला हुआ है। क्योंकि चित्त की जागरणा होती है, मनुष्य जो चीज देखता है वो चाहे दूसरा न देखे, लेकिन वो देखता भी है, जानता भी है और समझता भी है। इसके अलावा वो करामाती भी है, उसका इलाज भी कर सकता है। जब आपके अंदर सारी ये शक्तियां हो सकती हैं विराजमान, तो क्यों ना अपने चित्त को आलोकित कर ले, जबकि दीप भी है, दिया भी है और ये चित्त की फैली हुई आभा भी है। इस चित्त के बारे में तो जाने हमने कितने लेक्चर दिए होंगे। हो सकता है आप लोग जब मंदिर पे आइएगा तो इन टेप्स को सुनिएगा, आप जानिए। सहयोग में शुरुआत में जो लोग आते हैं उनको सब कुछ एक साथ नहीं बता दिया जाता, हालांकि सारा की सारा आपको बताने का है मुझे, और पूरे का पूरा अधिकार आपको देने का। जितनी भी हमारी शक्तियां वो सारी की सारी आपको देने की, लेकिन सर्वप्रथम धीरे धीरे कदम रखिए। बहुत से बातों का बोझा आप उठा नहीं पाएंगे। इसलिए सूझबूझ से पहले आपको परिपूर्ण किया जाएगा, और आप धीरे धीरे जब अपने कदम बढ़ाएंगे तब आपके सामने सारा सत्य प्रकट होगा, और उसको फिर आप उसकी प्रचिति आप कर सकते हैं, उसका पड़ताला ले सकते हैं कि बात ठीक है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। पर सबसे महान चीज जो आत्मा की है वो आनंद, वो भी केवल आनंद। सुख और दुख दो चीज है, एक ही रुपया के दो चेहरे हैं। कभी सुख तो कभी दुख, दुख तो कभी सुख। मनुष्य सोचता है क्या तमाशा। जब आत्मा की बात होती तो केवल आनंद होता है, लेकिन जब आपका अहंकार तृप्त होता है तो सुख लगता है, और जब अहंकार टूटता है और या तो प्रति अहंकार मन में कुछ दुख हो जाता है तो दुख लगता है। सीधी बात, चाहे इस घड़े में पानी डालिए, चाहे इस घड़े में पानी डालिए, जिस घड़े में पानी है वहीं उसका असर दिखाई देगा। लेकिन केवल आनंद ये दशा होती है कि जहां सुख और दुख दोनों के ओर देखा जाता है। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक को देखते देखते कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम ही शिवाजी महाराज है, तलवार निकालने लग जाते हैं।
बाद में पता होता है एक तो नाटक था, हम तो नाटक देख रहे थे। इसी प्रकार आपके नाटक टूट जाते हैं और फिर सिर्फ आनंद में मनुष्य विभोर रहता है, उसमें सुख और दुख की भावना नहीं। आनंद एक तीसरी दशा है जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि जिन्होंने कभी भी संगीत को सुना नहीं, जो जानते नहीं कि रागदारी क्या है, वो कहते हैं माँ ये आनंददायी चीज है। किसी खूबसूरत चीज को देखिए तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि मैं खरीद लूं, ये कितने पैसे की आई है, कितने को खरीदी गई। कोई ना कोई विचार मनुष्य करेगा, किसी भी वस्तु पर पड़े, किसी मनुष्य पे पड़े, कहीं अपना जहाँ चित्त गया उसका लौटना होता है विचारों। लेकिन ये तो निर्विचार स्थिति, अभिभूत होके आप देखे जा रहे हैं। जैसे अब समझ लीजिए एक सुंदर सी चीज रखी हुई यहाँ पे मिट्टी की बनी, इसको मैं बस देख रही हूँ। इसको बनाने वाले ने जो भी इसमें आनंद डाला है वो मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक झर 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 बह। संगीत को भी मैं निर्विचार में सुन रही हूँ, इसमें जो कलाकार आनंद भरने का प्रयत्न कर रहे हैं वो पूरा की पूरा वो सारा निराकार स्वरूप आनंद मेरे अंदर झर 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 बह, जैसे गंगा में नहा रही हूँ। तब मनुष्य आनंद में विभोर रहता है, लेकिन वो पागल नहीं हो जाता। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आदमी पार हो जाता है तो पागल जैसे रास्ते में बिल्कुल पूरे होश में रहता है। जितना होश आत्म साक्षात्कारी को होता है उतना किसी को हो ही नहीं सकता। वो पूरे होश में सतत, उसको हर चीज मालूम है। वो ये जानता है कि कौन सी चीज शुभदायी है और कौन सी अशुभ है, क्योंकक्योंकि फौरन उसको परेशानी हो जाएगी, किसी जगह जाकर लगेगा कि कुछ अशुभ हो रहा है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। शुभ अशुभ का विचार ही हमारे अंदर नहीं। ऐसा आदमी किसी भी घर में चला जाए, घर में शुभ हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ जब से मैं सहयोगी हो गया मेरे घर में सब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आप स्वयं शुभ हो गए। शुभ एक ऐसा वातावरण है जो एक आत्म साक्षात्कारी मनुष्य के कारण वातावरण का आया हुआ सारा कुछ शुभ बह निकलता है और अशुभ छूट जाता है। ये सब कुछ विधि का लिखा हुआ। आज्ञा चक्र को खोलने के लिए उनको ये बलिदान देना पड़ा और इस तरह से उन्होंने आज्ञा चक्र की व्यवस्था करी। आज्ञा चक्र बहुत संकीर्ण, छोटा सा और आसानी से खुलने वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य में जो स्वतंत्रता आ गई उससे वो अहंकारी बन गया। इस अहंकार ने उसका आज्ञा चक्र है बंद कर दिया और उस बंद आज्ञा चक्र से निकालने के लिए अहंकार निकालना जरूरी है और अहंकार निकालने के लिए आपको अपने मन पे ही काबू लेना पड़ता, लेकिन आप मन से अहंकार नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप मन से अहंकार निकालने का प्रयत्न करेंगे वैसे ही मन बढ़ता जाएगा और अहंकार बढ़ता जाएगा। अहम करोति सा अहंकार, हम करें, इसका मतलब अगर हम अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करें तो अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि हम अहंकार से ही वही कोशिश करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने अहंकार को दबा लेंगे, खाना कम खाएंगे, दुनिया भर के उपद्व्याप, एक
पैर पे खड़े हैं तो कोई सर के बल खड़ा है। हर तरह के प्रयोग लोग करते हैं अपने अहंकार को नष्ट करने, लेकिन इससे अहंकार नष्ट नहीं होता, इससे बढ़ता है। उपवास करना, जप तप करना आदि सब चीजों से अहंकार बढ़ता है। हवन से भी अहंकार बढ़ता, क्योंकि अग्नि जो है वो राइट साइडेड है। जो कुछ भी हम कर्म कांड करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, उससे अहंकार बढ़ता है। और मनुष्य सोचता है कि हम सब ठीक हैं। हजारों वर्ष से वही कर्म कांड करते रहते और उल्टा सीधा सब मामला जो भी सिखाया गया वही वो कर रहा है। इसीलिए सहयोग कर्म कांड के विरोध में कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। और वो अतिशयता पे पहुंचना तो और गलत। जैसे हमने कहा कि अपने अहंकार को निकालने के लिए आप उसको मराठी में जोड़े पट्टी कहते हैं, जूते मारे। तो रोज सवेरे सहयोगी जूते लेके चले लाइन में। अरे अगर आपके अंदर अहंकार हो तब हर एक आदमी हाथ में जूता लिए चला जा रहा है रास्ते से। ये सब कर्मकांड सहयोग में भी बहुत घुस गए। यहाँ तक कि फ्रांस से अभी एक साहब लेकर आए थे कि वहाँ वो वाशी के हॉस्पिटल से कर्मकांड लेके। अरे बाबा, ये तो बीमारों के लिए है। आपको अगर ये बीमारी हो तो आप ये कर्मकांड करो। जो कैंसर की बीमारी के कर्मकांड है वो भी उसमें लिखे। मैंने कहा कि मनुष्य का स्वभाव है कि कर्मकांड करे। क्यों? कि वो सोचता है मैं कर सकता हूं, मेरे कर्मकांड से कार्य हुआ। और इस कर्मकांड में सिर्फ आप ही लोग नहीं, परदेश में भी बहुत से लोग कर्मकांड करते रहते, तरह तरह। जैसे साल भर में एक बार चर्च को जाएंगे, माने आज के दिन, उसके बाद भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। दुनिया भर के गंदे काम करके और कैथोलिक धर्म में जा करके वो कन्फेशन करते। ये सब मूर्खता अगर आप देख सके तब आप सहयोगी हो गए। अगर आप समझ सके कि ये सब गलत काम जो हमने किया है ये गलत है और अब से आगे ये काम नहीं करने का, ये अगर आपकी समझ में आ जाए तो बात आपके दिमाग में आ जाए। अब कर्मकांडी लोगों में और भी विशेषताएं होती। एक तो वो एक नंबर के कंजूस होते। अगर उनसे आप 10 रुपए की बात करो तो वो आकाश में कूदने लग जाते। उसको मराठी में कवड़ी चुंबक कहते हैं। एक बात है, मराठी में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उससे आपका अहंकार ऐसे ही उतर जाए। जैसे कि कोई अपनी बड़ी बड़ी बातें बताने लगा, मैंने ये किया, मैंने वो कहा, तो उसको धीमे से कहने का कि तुम तो चने के पेड़ पर चढ़ रहे हो। चने का पेड़ तो होता नहीं, हरभऱ्याच्या झाडावर चढतात तुम्ही, तो वो ठंडा हो जा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं, जब तक ये मैं नहीं छूटता तब तक हमारा ईसा मसीह को मानना